नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है लर्निंग विद एक्सपर्ट्स। इस सीरीज में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपनी डेली लाइफ में जिन प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए हम सॉल्यूशंस कुछ एक्सपर्ट्स से ले पाएं। और आज का जो हमारा पहला एपिसोड है हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज। और हमारे साथ इस डिस्कशन के लिए वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट एंड शी इज अ माइंडसेट कोच एंड अ क्लिनिकल hypnotherapist. Her name is Suchita Sanjay. So we welcome Suchita to the show today. Hello, welcome to the show, Suchita. Thank you so much, Poonam. It's a pleasure to be here on the first episode of your series. Yeah. That's a pleasure. So, as I mentioned, सुचिता, आज हम कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं क्योंकि लाइफ इज सच दैट वी वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अचीव एवरीथिंग एंड वी वांट टू बी सक्सेसफुल एट एवरीथिंग एंड प्रॉब्ली एट किसी न किसी लेवल पे वी आर बर्निंग आउट, वी आर गेटिंग स्ट्रेस्ड एंड इसलिए आज की डेट में मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना पहले के किसी भी टाइम से बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? Absolutely, because of late, I think many of them are getting into this kind of mental health issues. It's almost becoming a pandemic, equivalent to a pandemic, I must say, because I think out of 10, if you are meeting people, it's about 5 to 6 people are struggling with something or the other. एब्सोल्युटली। सो Yeah. हमने कुछ मेन कंसर्न्स लिए हैं जिसमें हम आज की डेट में वी स्ट्रगल विद एंड हम शुरू करना चाहेंगे a feeling of being a victim when we feel that we are ill treated, we are not taken care of properly, and we believe that we are not able to do something, हम वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाह रहे हैं, because we are victim, we are helpless. कोई और हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई और हमारे लिए डिसीजंस ले रहा है, एंड वी फील पावरलेस एंड हेल्पलेस। सो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए हम? First of all, it is very important to get out of victim mentality. It is because it is the lowest form of scarcity mindset also. We tend to hold somebody else responsible or some incidents responsible for our failures, which is again holding ourselves in the victim mentality and having self-pity also. Why me? So a couple of years ago, when I was partially bedridden in 2011, that was when the first 3 months I used to blame and curse myself. Why me? So I did not try to even understand what is happening with my body and how I can heal it. Mm-hmm. So the next 3 months was an eye opener. I started analyzing. Okay, now I have to stop putting myself in that victim mentality and start analyzing what is it that I have to learn from this journey and then take myself ahead. In fact, some clients do come with severe problems of being in that victim mode. Normally, what happens is either they get into the flight mode or the freeze mode, or they will even get into the numbing mode. Absolutely, I agree. So when this happens, what happens is they're just not able to progress with their life. So the first thing that they have to start doing is, what has this got to teach me, and how can I get out of this? So if they put themselves into the thinking mode rather than the flight mode or the escape mode or the freeze mode or the numbing mode. बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ऐसी जब किसी सिचुएशन में हम होते हैं तो हमें सबसे पहले लगता है कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, और हम बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। और जैसे आप कह रही हैं कि हमें अ, इस सिचुएशन में सबसे पहले ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो हमारे साथ हुआ है ये हमें क्या सिखाना चाह रहा है, व्हाट इज इट दैट इट इज ट्राइंग टू टीच अस। दैट इज द फर्स्ट थिंग। पर होता क्या है ना, जब हम उस मोड में होते हैं तो वी आर नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट। पर आपके टाइम मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम आता है कि यू आर जस्ट डन विद एवरीथिंग, और एंड यू फील कि अब इससे आगे क्या होगा, एंड दैट इज द पॉइंट यू शुड स्टार्ट लिफ्टिंग योर सेल्फ अप अगेन। और विक्टिम माइंडसेट का मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट
रीजन ये होता है कि आप प्रॉपर बाउंड्री सेट करना नहीं जानते हैं, और इसलिए Absolutely. आप अपनी पावर किसी और के हाथ में दे देते हैं, राइट? सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, सुचिता? So often it so happens किसी और को हम राजा या रानी बना देते हैं माइंड में. बिल्कुल। So they will be ruling and they will be running your life also. So consciously, we have to make that decision and tell that king or the queen in the head, who is somebody else, sorry, I'm dethroning you right now. And वेरी I am पावरफुल। taking my power back. When we say that, that is the time the switch happens. That is the time people start searching for even seeking help. हाँ, तो सबसे And that पहले is हमें where, यही करने की जरूरत है कि अपने आप को ये समझाने की जरूरत है कि वो जिसको हमने अपने दिमाग में इतना बड़ा बना रखा है और जिसको हमने इतनी सारी पावर्स दे रखी है हमारी लाइफ कंट्रोल करने के लिए, सबसे पहले हमें वो पावर अपने पास वापस लेने की जरूरत है। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये लाइफ दूसरों को खुश करने के लिए सिर्फ नहीं है। आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है, आप कितने सारे लोगों को सर्व कर सकते हैं, बट सिर्फ उस एक या दो जो भी वो इंसान या वो सिचुएशन है वो आपके दिमाग में इतनी बड़ी बन चुकी है कि वो आपको कोई और चीज करने नहीं दे रही है। तो जैसे सुचिता ने एक बहुत ही पावरफुल लाइन बोली कि अब जो भी है वो जो आपके दिमाग में किंग या क्वीन बन के बैठा है, आप उसको ये कहेंगे कि अब मैं आपसे अपनी पावर वापस लेती हूँ और आप मेरी लाइफ के कंट्रोलर नहीं है, मैं अपने आप अपना लाइफ का कंट्रोलर हूँ। सो दैट इज द वेरी पावरफुल एंड दैट इज वेयर द शिफ्ट हैपन्स। और वहां से आप अपनी रिकवरी की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आप काउंसलिंग के लिए, थेरेपी के लिए आप हेल्प भी सीख कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि this is your life and you are the one who has to be on the controller seat and nobody else, right, Sujata? yes, yes, very true. Yeah, So yeah. I found that statement really very very powerful, Sujata. Thank you for that one. चलिए अब एक चीज ये हो जाती है, और अब नेक्स्ट जो हमारा कंसर्न विच इज ओवर थिंकिंग, जो आप आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। क्योंकि अगर मेरे दिमाग में कोई एक नेगेटिव थॉट आ जाता है, फिर मैं उसके साथ कुछ और लिंक कर देती हूँ और मैं कुछ और इमेजिन करने लग जाती हूँ, कुछ और एज्यूम करने लग जाती हूँ, और एक मैं लूप में फंस जाती हूँ जिससे मैं बाहर नहीं निकल पाती है, राइट? तो अब इस Yeah. सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? So often what happens is overthinking starts with the phrase what if. यस। So अगर कुछ हो जाए तो, that is where it starts. And once that thought comes, the next looping thought will be, okay, this will be the consequence of it, and this is the way I'll be feeling, and it'll devastate me, or my life will be havoc if I do this. So एक negative looping thought will lead to another, and it just goes on. एब्सोल्युटली। So इस वक्त में you have to do the very important exercise. The moment you have the first overthinking thought, you have to do an exercise called the ladder exercise. Okay. So what is this So you can exercise? have two ladders. Okay. One is ladder A with 3 steps. So 1 step, 2 step, 3 step. Write it down. Hmm. Second ladder is ladder B. 1 step, 2 step, 3 step. Okay. Okay. So first, if at all your negative thinking is, what if I become a failure? This is the Hmm. first. Hmm. Write it down. The next, write down the feelings that you will have because of what if you're a failure. Hmm. And the third, what will be the outcome? Write all of this. Right. Okay. So this is on ladder one. Ladder one. And the ladder B is the positive thinking ladder. So below the step, if at all, if you can write, what if I am a success? Mm-hmm. And in the second step, if you can write, what are the feelings that will be associated with your success? Right. And finally, the actions that you're going to take because you have all of this positive thinking and feelings within you. Hmm. So So, first is agar, what is my thought? Second is how I am feeling, and third is how I'll react or what actions I'll take.
सो द फर्स्ट लेडर इज जिसमें हम नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं और हम उन्हें बढ़ा रहे हैं, और दो लेडर भी है उसमें हम पॉजिटिव थिंकिंग ले रहे हैं कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तब ये होगा, मैं कैसा फील करूंगी, और अगर मैं ऐसा फील कर रही हूँ तो मैं क्या एक्शंस लूंगी, राइट? Yes, that's right. So when we do this, what happens is with the first negative overthinking itself, it will stop. यस, and it'll You tell won't my be able. mind that there are other options as well. Let me not pick up the negative one. मैं नेगेटिव थॉट को नहीं पिक करती, और मेरे पास चॉइस है कि मैं पॉजिटिव पिक कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव फील कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव एक्शंस ले सकती हूँ, और अगर मैं पॉजिटिव एक्शंस लूंगी देन डेफिनेटली there will be success. Probably the amount of that may vary, but at least I'll not be in that negative space जो था मेरे पहले thought के साथ generate हुआ है. I'll not be staying with that negativity at least. So yeah, तो ये तो बहुत ही easy तरीका बताया है आपने, सुचिता. Very easy way of breaking the pattern. यस. सो जो लूप नहीं टूटता ना, हमें समझ नहीं आ पाता कई बार कि मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में थॉट्स आते ही जा रहे हैं. तो अब आपको पता है कि पहला नेगेटिव थॉट जो आपके मन में आता है, चाहे वो डर को लेकर के हो, चाहे वो इनसिक्योरिटीज को लेकर के हो, चाहे वो फेलियर्स को लेकर के हो, यू स्टॉप राइट देयर, यू राइट डाउन व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट द थॉट इज, व्हाट इज द फीलिंग, एंड व्हाट इज द एक्शन यू विल टेक. और उसकी जगह पे नाउ यू चूज टू रिप्लेस इट विद, अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मैं कैसा फील करूंगी और मैं कैसे एक्शंस लूंगी. तो आप आपका जो थॉट पैटर्न था वो ब्रेक हो गया है. तो वो जो ओवर थिंकिंग थी वो तो खत्म होगी ही, बट यू विल ऑल्सो इमीडिएटली शिफ्ट टू अ वेरी पॉजिटिव स्पेस. और Yes. जो रेस्टलेसनेस ओवर थिंकिंग के साथ एक एसोसिएटेड होती है वो सबसाइड हो जाएगी, एंड यू विल बी इन अ बेटर प्लेस टू टेक नाउ पॉजिटिव एक्शंस जो आपको ओवर थिंकिंग करने नहीं दे रही थी. Yes. Wow. So what a powerful and a simple exercise to beat overthinking, Suchita. That's brilliant. तो I'm sure कि जो भी overthinking से परेशान हैं वो इस छोटी सी एक्सरसाइज को करके काफी बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं. Yeah. Okay, so let's get to the next one, which is anxiety, right? So just to explain, anxiety हम तब कहते हैं जब एक स्ट्रेस एक लॉन्गर पीरियड के लिए हमारे साथ रह रहा है. और जब तक हम स्ट्रेस में होते हैं नॉर्मली ये होता है कि हमें पता होता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द स्ट्रेस. प्रॉब्ली एक प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन मुझे मीट करनी है, एंड वंस दैट डेडलाइन इज मेट आई विल बी आउट ऑफ दैट स्ट्रेस. वो जब तक अचीव नहीं हुआ या जो एग्जाम्स हैं उनका स्ट्रेस है, तो वो चीज समझ में आती है एंड वी कॉल इट स्ट्रेस. बट इफ देर इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रेस विच इज देयर इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेस है जो काफी लंबे टाइम तक बना हुआ है, और आप एक ऐसी स्टेट पे आ गए हैं जब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका कॉज क्या है, बट आप बहुत परेशान और रेस्टलेसनेस महसूस कर रहे हैं उसकी वजह से. आप कोई मेजर चीज अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका ब्रेन उस प्रोसेस की तरफ जा ही नहीं पा रहा उस एंजाइटी की वजह से. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एंजाइटी, एंड लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम सुचिता कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए. Anxiety can crop up because of various reasons. It can be anything that may, have a snowball effect right from your childhood, and it may kind of bombard when you are in your, mid 30s, 20s, 40s. It can be any time. So, first thing is to identify the root cause of it by accessing the subconscious mind, because the subconscious mind may it'll have a Pandora box of all the feelings, emotions that we would have gone through in our lives. So on the surface level, we may not be able to tell, okay, what is the exact reason? Hmm. Or you may just come up with two things, which may not actually be the root cause. Yes. So when we access the subconscious mind through hypnosis, that is when the actual root cause for anxiety is revealed. But however, to cope up with anxiety, simple and effective, but at the same time, most powerful tool also can be used. Right. This is called the 1 point exercise. Okay. So in this, what happens is we just have to first take ourselves to the relaxed mode and take our attention to the mind space Right. and assess in your mind on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, what is the level of anxiety? Just close your eyes. Anybody can do this. Okay.
concentrate on your breathing. And then in your mind space, just assess from 1 to 10, 10 being the highest level of anxiety, where it is. And you can tell me the number. Okay, probably I'll pick up 6 for now. Okay, Yeah. fine. So now take your attention again to the mind space and shift that anxiety all the way down to the chi point, which is 3 fingers below your belly button. See that anxiety shifting all the way down and allow it to disintegrate. And allow yourself to calm down further. Take your attention to the mind space. And now, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, where do you see the level of anxiety right now? It comes down subsequently. I think I'll rate it at 1 or 2 now. Yeah. So, this is a very simple exercise. Absolutely. So, even if at all we are going out for any meetings, any uh, interviews, or any challenging situation that we have to face, and it is creating a kind of a stress, the first thing to do is to reduce the level of stress and anxiety. Wonderful. So, and this is called as 1 point exercise, right? Yes. बहुत बढ़िया। जो सुचिता कह रही हैं, एंजाइटी का जो रूट कॉज है वो डीप डाउन आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या प्रॉब्ली सम अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस में भी हो सकता है। और कई बार सिर्फ सरफेस लेवल पे अगर हम सोचें तो इसका रूट कॉज शायद हमें ना मिले, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी सीक हेल्प, वी विजिट अ थेरेपिस्ट और डॉक्टर, विच एवर सूट्स यू। बट जब तक आप उनके पास जाते हैं और ये हेल्प लेकर के आते हैं, एक सुंदर सी एक्सरसाइज सुचिता ने हमें बताई है। पर सबसे बड़ी परेशानी यही है जो हम नहीं करते हैं, वी डू नॉट सिट विद आवर सेल्व्स एंड वी डू नॉट गिव दैट टाइम आर टू आवर सेल्व्स टू हील। अपने आप के साथ बैठ के समझने के लिए कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक बार आपको ये चीज़ जब समझ में आ जाती है, जब भी आप रेस्टलेसनेस महसूस कर रहे हैं, किसी तरीके का स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, सिट डाउन विद योर सेल्फ, अपने साथ बैठें शांति किसी ऐसी जगह पे जहाँ आपको डिस्टर्ब कोई नहीं कर पाए थोड़ी देर तक के लिए, वहां बैठें। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने आप को काम करके सोचने की कोशिश करें कि आप क्या फील कर रहे हैं और उसका रीजन क्या है। अगर जैसे सुचिता अभी बता रही हैं कि आपको रीजन नहीं भी समझ में आ रहा, तो कम से कम आप उस रेस्टलेसनेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अपने माइंड में पहले आप ये सोचें कि अभी आपकी एंजाइटी किस लेवल पे है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। और उसके बाद आप ये महसूस करें, अपनी बॉडी को ये बताएं कि वो एंजाइटी जो है अब धीरे धीरे मेरी बॉडी से नीचे की तरफ शिफ्ट होते होते मेरी बेली बटन से 3 फिंगर्स नीचे के गैप तक जा रही है, एंड इट इज ग्राउंडिंग, मतलब वो मेरी बॉडी को लीव कर रही है। एंड दैट एक्चुअली हैपन्स, आप इमिडिएटली महसूस करेंगे कि यू आर रिलीव्ड। मतलब हो सकता है कि मैं कंप्लीटली वो चीज़ नहीं होगी, बट यू विल फील एन ईज विद इन योर सेल्फ। और जब हम ये चीज़ वी सिट विद आवर सेल्स ऑन अ डेली बेसिस और ये चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग अपने आप काफ़ी हद तक शांत होता जाता है। और ये जो हमने अपने दिमाग में ही ये सारी चीज़ें बना ली होती हैं, वी गेट रिड ऑफ दैट। और अब हमारे दिमाग में कुछ प्रोग्रेसिव करने के लिए, कुछ पॉजिटिव करने के लिए नई एनर्जी और नया स्पेस जनरेट होता है। तो आई एम रियली लविंग इट दी एक्सरसाइजेज दैट सुचिता इज शेयरिंग। जैसे ओवर थिंकिंग के लिए हमने लेड एक्सरसाइज की है, एनजाइटी के लिए हमने 1 point एक्सरसाइज की है। अगर आप अभी तक ये नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि जस्ट टेक अ पेपर एंड अ पेन और ये की चीजें नोट कर लें, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े इट विल हार्डली टेक 5 minutes एंड यू विल बी आउट ऑफ दैट नेगेटिव स्पेस। सो
लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि आज जिस स्पेस में हम हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और जब हम बहुत कोशिश करने के बाद भी किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे, और हमारा कोई कलीग, हमारा कोई नेबर, हमारा कोई फैमिली मेम्बर, और इवन हमारा कोई नॉन उस चीज़ को अचीव कर लेता है, देन वी स्टार्ट फीलिंग जेलस, वी फील इनसिक्योर। और दिस इज वेरी नेचुरल इन अ वे, बट ये आपके काम को और आपकी लाइफ को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि everybody is doing their bit, and everybody has their own journey. Let's focus on our journey and देखें कि हम इन एनर्जीज से कैसे, नेगेटिव एनर्जीज से कैसे बच सकते हैं, और कैसे we can create a positive shift in our life. So Suchita, how can we deal with insecurities and jealousy? So let us first understand how insecurities and jealousies can crop up within us. Hmm. It crops up within us because of comparisons. Absolutely. Yeah. Yes. So let us understand comparisons now. Okay. There are two types of. One is constructive comparison, and the other one is destructive comparison. Hmm. So when it is constructive comparison, what happens is, even though you're comparing yourself to somebody else, you will only look at what is the best points that I can take from that person and improve on myself. Right. When it is destructive comparison, what happens is you're always giving your power away to other person, and you're not concentrating on your life. Instead, you're always comparing yourself to the other person and what you're missing out on, Hmm. rather than working on yourself. So here you're leaking out your own energies by converting it into jealousy and insecurity. Right. So the first thing to do is to start embracing yourself and telling yourself, I am good enough. And a very important exercise that I normally tell my clients to do is, please write down the plus points that you have within you. Okay. Identify all of those points that you feel is unique to you, and also that is very powerful for you. One thing to understand is that you are unique and nobody can be a copy or replica of you. So just highlight those points which are very unique to you and start working on that. If at all you can take something else from that other person and improve on yourself, do it so in your own unique way rather than copying it. Absolutely well said. तो बहुत ही अच्छा तरीके से सुचिता ने हमें ये चीज़ समझाई कि इनसिक्योरिटी तब पनपती है, तब क्रॉप अप करती है, जब हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बचपन से शुरू हो जाती हैं, सिबलिंग्स के बीच में शुरू हो जाती हैं, क्लासमेट्स के बीच में शुरू हो जाती हैं, एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, और हम ये भूल भी जाते हैं कई बार कि उन छोटी छोटी चीज़ों के सीड्स अंदर कहीं रह जाते हैं, जो बाद में आपकी लाइफ में लेटर ऑन क्रॉप अप करते हैं। तो कंपैरिजन जैसे सुचिता बता रही हैं, दो तरीके के हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव, एक है डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में आप ये देखते हैं कि अगर कोई और सक्सीड कर रहा है, तो उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से वो सक्सीड कर रहा है, एंड यू ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट, यू ट्राई टू एम्ब्रेस दोज क्वालिटीज, राइट। एंड दूसरा है नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव, जिसमें यू लुक डाउन अपॉन योर सेल्फ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए व्हाट वी कैन एक्चुअली डू इज कि अपने आप को प्यार करें, अपने आप को उस नेगेटिव स्पेस से बाहर निकालने के लिए लेट्स एम्ब्रेस आवर सेल्फ, दैट इज व्हाट सेल्फ लव इज, राइट। जब हम अपने आप को जिस तरीके से हम हैं एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, तो हम इन चीज़ों में कम पड़ते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको अपने में खूबियां ढूंढनी है, खामियां तो बहुत बहुतों ने बता दी हैं आपको, आप खुद भी पता चल गई होंगी। नाउ इट्स टाइम कि हम अपने अंदर पॉजिटिव्स ढूंढें। क्या वो चीज़ें हैं जो हमें यूनिक बनाती हैं, हम उनके बारे में पता करें। वो क्या चीज़ें हैं जो हमें बहुत पावरफुल बनाती हैं, उन्हें पता करें, एंड उनको अपने आप से रिपीट करें, ताकि वो हमें एक स्पेस एक हैप्पी सेफ स्पेस में रखती हैं।
तो अपनी खूबियां लिखना जल्दी से शुरू करें, एंड देन रीड इट आउट टू योर सेल्फ एवरी डे। और आप धीरे धीरे उस नेगेटिविटी से बाहर निकल के यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ मोर वंस अगेन, यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ वंस मोर। कभी कभी लास्ट, तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सो जस्ट टेक योर राइट हैंड, टेक एंड इट, पैट पुट इट योरसेल्फ, हियर। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए आज के डाइट में आप सुनते होंगे मिरर एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। आप अपने आप से उठें सवेरे, यू लुक एट योर सेल्फ एंड यू टेल अ फ्यू पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ, और अपने आप को बताएं कि आप अपने आप को जैसे आप हैं एक्सेप्ट करते हैं, और यू लव योर सेल्फ। क्योंकि जब आप अपने आप को प्यार करते हैं तभी यू हैव दैट लव टू ऑफर इट टू अदर्स एज वेल। अगर हम खुद ही इनसिक्योर हैं, खुद ही एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव स्पेस में हैं, देन दैट इज व्हाट वी डिस्ट्रीब्यूट अराउंड। So Yeah. this One is thing is very important to do is to remain very cheerful and happy. it all begins with you. So it's now time to, start taking care of yourself. And yeah, let's come to the last point that we want to discuss. हम चाहते हैं कि हर चीज वैसी हो जैसा हम चाह रहे हैं या हम प्लान कर रहे हैं। सपोज इफ यू हैव किड्स अराउंड, उन्हें ये पहनना चाहिए, उन्हें ये पढ़ना चाहिए, उन्हें इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। या आपके कलीग्स हैं तो वी एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म और बिहेव इन अ सर्टेन वे, और जब वो चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती हैं तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, हम बहुत परेशान और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। वी हैव लिटरली बिकम कंट्रोल फ्रीक्स। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सुचिता? See, one thing is with regard to children, I would like to say this first. Most of the time, parents try to live their dreams in their children, and that to unfulfilled dreams also, and they expect a lot of things from the children. The first thing to understand is that the children always come through them, but they do not belong to them. एब्सोल्युटली, दैट इज कम्प्लीटली अनफेयर, क्योंकि हर बच्चा अपने कुछ खूबियों के साथ पैदा होता है, उसके अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, और जब हम अपने उन अधूरे सपनों को उनके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं तो वो अपनी इच्छाओं से दूर हो जाते हैं, और फिर वही जर्नी कंटिन्यू होती है, क्योंकि फिर उन्हें दोबारा से सोचना शुरू करना पड़ता था कि व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट, क्योंकि हमने तो उन्हें ये Yeah. सोचने का मौका ही नहीं दिया। तो लेट्स स्टॉप इट राइट देयर, और बच्चों को लेट देम फ्लरिश इन देयर ओन वेज विद देयर ओन एबिलिटीज, वट एवर यूनिकनेस दैट दे हैव, राइट सुचिता? Yeah, absolutely. Sometimes when I do the regression, the pattern is almost generational. Okay. So they would have acquired this pattern because their parent was the control freak. Mm. So they don't understand the fact that they have to step aside and allow the child to evolve, be there as a support system. Same goes to the employees also, or colleagues also, who are working around. They may have their own unique ways of bringing out things. So just allow them to encourage them to bring out their uniqueness rather than being a control freak and saying, no, this has to go this way. क्योंकि नुकसान यहाँ Yeah, पे अपना ही होता है, क्योंकि वो एम्प्लॉय वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और अगर हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें वो स्पेस देते हैं टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स, टू कम अप विद देयर ओन आइडियाज, और अपने तरीके से काम करने का, हमें क्या चाहिए एंड रिजल्ट वो जरूर हम बता सकते हैं, बट उसे कहाँ कैसे करना है वो उतना स्पेस हमें जरूर अपने एम्प्लॉयज को या हमारे टीम मेंबर्स को जिनके भी साथ हम काम कर रहे हैं उतना स्पेस देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो क्यूरियोसिटी, वो पॉजिटिविटी वहां पे खत्म हो जाती है, राइट? absolutely. Yeah. वंडरफुल सुचिता। सो बहुत ही प्यारे टूल्स, बहुत ही सिंपल टूल्स आज आपने हमें दिए हैं सुचिता, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड देयर इज वन कोट दैट आई विल वांट टू शेयर आप सबके साथ, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि nothing can hurt you more than your own thoughts, and nothing can heal you better than your own thoughts. तो ये चीज हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आसपास हो रही इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने आसपास रह रहे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने थॉट्स और अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आज आपको Absolutely. इतने सारे टूल्स यहाँ पे सुचिता ने दिए हैं। लेट्स मूव फ्रॉम दैट नेगेटिविटी, फ्रॉम दैट नेगेटिव पैटर्न टू अ पॉजिटिव पैटर्न। थैंक यू सुचिता, आपने इतने प्यारे टूल्स हमारे साथ शेयर किए, क्योंकि
हम इतने परेशान और इतने हेल्पलेस फील करते हैं कुछ इन कंसर्न्स को लेकर के, और आपने हमें इतने सिंपल टिप्स दिए हैं कि जिनको हम बिना किसी और की हेल्प के अपने आप अपने साथ ही बैठ के यूज करके, एंड वी कैन कम आउट ऑफ दैट नेगेटिव स्पेस एंड क्रिएट दैट मेजर शिफ्ट्स इन आवर लाइफ. Yeah, thank you so much for giving me the space to share a few tips on how it could be helpful for all. It's really a pleasure, Suchita, and we hope for having such sessions more frequently, जहां हम कुछ और concerns भी आपके साथ शेयर कर सकें. और अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई इश्यूज हैं जिनको आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपके क्या फीडबैक है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें. अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक करें, उनके साथ शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट, ताकि आप अगले ऐसे सेशंस को मिस ना करें. एंड विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू. Thank you.